some political slugfest happening over there. Tensions are rising in the state of West Bengal ahead of next year's assembly elections. A poster war, in fact, erupted in Kolkata during Union Home Minister Amit Shah's visit to the holy Kalighat temple. The West Bengal BJP alleged that posters of Amit Shah were removed from the area, sparking massive outrage. In response, the BJP has now filed a formal complaint with the Kolkata police demanding an action. This incident adds to the growing political heat in the state as parties gear up for the crucial elections. Those are some developments coming in from the poll-bound state of West Bengal. Remember, Union Home Minister Amit Shah is currently in West Bengal. He was there to inaugurate a special Operation Sindoor-themed pandal. He also visited the holy Kalighat temple. But now the BJP is alleging that the posters which are put up to welcome Union Home Minister in the state were removed by Trinamool Congress. So now the BJP has filed a formal complaint with the Kolkata police demanding an action into this. Further growing the political heat in the poll-bound state of West Bengal. Parties are gearing up for the crucial election. Amidst all of that, we are looking at a political slugfest and specifically a poster war erupting amid the festival season. It's BJP versus Trinamool Congress yet another time. While Union Home Minister Amit Shah is in the state of poll-bound state of West Bengal, BJP's big allegation at Trinamool Congress for having removed the posters which were put up to welcome Union Home Minister Amit Shah in the state. Heat intensifying as elections are approaching. That's a developing story. This is what we've got to know through our sources on ground. The tensions are only rising in the state of West Bengal ahead of next year's assembly elections. The poster war in the recent development has erupted in Kolkata during Union Home Minister Amit Shah's visit to the holy Kalighat temple. The West Bengal BJP has alleged that posters of Amit Shah were removed from the area, sparking outrage. In response, now BJP has filed a formal complaint with the Kolkata police demanding an action into the same, and this incident is only adding to the growing political heat in the state as parties are gearing up for the next year's crucial elections. Shifting focus from the politics to the celebration bit in West Bengal, Union Home Minister Amit Shah is in Kolkata today ahead of the Durga Puja festivities. He inaugurated a pandal themed Operation Sindoor. Some beautiful visuals coming in from there. But during his address, Union Home Minister Amit Shah extended greetings to the people of Bengal and across the country, saying the 9-day Navaratri celebration has gained global recognition and reflects devotion to Shakti. With the West Bengal polls scheduled to take place next year, Amit Shah also sounded the poll bugle in the state. He expressed hope that the people of Bengal would soon get a government capable of building Sonar Bangla or a prosperous Bengal. मैं आज इस भव्य पंडाल में अभी मां की पूजा कर आया हूं। मैंने मां के सामने प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर पाए। हमारा बंगाल फिर से
सुरक्षित, समृद्ध, शांत, सुजलाम सुफलाम बने और यहां पर कवि गुरु के कल्पना के बंगाल का निर्माण हम कर पाए। Trinamool Congress's MP Abhishek Banerjee was quick to hit out at Amit Shah, demanding that he return 1.95 lakh crore rupees before speaking about building a sonar Bangla. Banerjee's sharp criticism adds fuel to the political heat ahead of the upcoming West Bengal Assembly elections. उनसे पहले पूछिए कि जो 2 लाख करोड़ आप बंगाल का पैसा रोक के रखे हैं, वो पैसा आप कब छोड़ेंगे और किस आधार पे और किस नियम पे आप रोक के रखे। और अगर अमित शाह जी कहते हैं कि भाई तृणमूल के तरफ से झूठ बोला जा रहा है, आप चुन लीजिए कौन सा चैनल में आपको बैठना है, कितना बजे बैठना है। आप तो चैनल भी आपका है, पत्रकार भी आपका है, समय भी आप तय कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा। Got some ground reports coming in from the very pandal that we spoke of, which has been themed around Operation Sindoor, inaugurated by none other than the Union Home Minister Amit Shah there in Kolkata. Let's take a look. कोलकाता में गए 40 साल में जिस कदर परसों बारिश हुआ था, उसका बाद नहीं लग रहा था कि कोलकाता के जो बड़े बड़े पूजा है वो अपना काम कर पाएंगे, पूजा ठीक तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, संतोष मित्र स्क्वायर, जो कि सौजल घोष की पूजा कहा जाता है, तो सौजल घोष के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, देखिए एक बार प्रतिमा देख लीजिए। ये प्रतिमा हर साल दर्शनीय रहता है क्योंकि अलग अलग थीम रहता है। इस बार इस पंडल का थीम रहा है ऑपरेशन सिंदूर। बाहर से भी आपको दिखाएंगे इसमें कैसा बना हुआ है, लेकिन पहले सौजल घोष से पूछ लेते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ, इस बार भारतवर्ष का मूड ही है ऑपरेशन सिंदूर। तो जब मूड ही है ऑपरेशन सिंदूर, तो उसी को मूड ही को उतर दिए मैदान में। देखिए, हम लोग यहाँ पर 2 टाइप ऑफ सिंदूर का ऑपरेशन रखा है। एक सिंदूर जो है माँ बहन का सिंदूर, देवता का जो पूजा का सिंदूर, वो एक सिंदूर है। और एक सिंदूर जो हुआ उसको मिटाने का बदला लेने वाला, जिसको ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। ये दोनों सिंदूर हमने दिखाया। एक ट्रेडिशनल सिंदूर जिसको हम सनातनी लोग, हिंदू लोग जिसको बड़ी इज्जत के साथ पहनते हैं, उसका मतलब मेरा माँ खुश है, हमारा परिवार खुश है, तो वो सिंदूर एक हुआ। और एक हो गया जो इसको मिटाने का जो कोशिश किया गया था, उसका खिलाफ जो ऑपरेशन चला, मिलिट्री ऑपरेशन, वो है। तो ये रहा सौजल घोष। आपको एक बार दिखा देते हैं, पैंडल के ऊपर एक बार दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग मुंह रखा गया जिसपे सिंदूर लगाया गया है। सबसे अच्छा आपको दिखाई देगा, देखिए देवी दुर्गा का ये जो मूर्ति है, इसमें देखिए सिंदूर लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की ये जो थीम है, एक तरफ जहाँ देवी दुर्गा और बाकी देव देवियों का सिंदूर का जो एक ट्रेडिशन है वो दिखाया गया है, दूसरी तरफ दिखाया गया है कैसे यहाँ पे सिंदूर को छीना गया था, जो कि पहलगाम में घटना घटी थी। उसी का प्रोजेक्शन दिखा, अंदर जब देव देवी का दिखाया जा रहा है। देख रहे हैं बीच से एक त्रिशूल यहाँ पे लटक रही है, जो कि एक शैंडिलियर जैसा बना हुआ है, जिसको हम लोग झाड़बाती कहते हैं। और बाहर से इसको एक माउंटेन जैसा, एक पहाड़ जैसा रूप दिया गया है, और इसको कोशिश किया गया जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होगी, और वहाँ पे पूरा ऑपरेशन सिंदूर का ऊपर एक फिल्म बनाया गया है, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार आपको मूर्ति दिखा देते हैं। एकदम सनातनी जो दुर्गा प्रतिमा होता है वैसे ही इसको बनाया गया था। यही वो दुर्गा पूजा है जो इन्होंने एक बार सोने की बनाई थी दुर्गा। और लोग यहाँ पे आए हैं, लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि कैसा लग रहा है। कहाँ से आए आप? उड़ीसा से आए ये देखने के लिए? हाँ। उड़ीसा से? उड़ीसा। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर का थीम सुन के आए क्या? हाँ, वही सीन देख के आए हैं। अच्छा, चलिए, ये उड़ीसा से आए हैं। तो यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं जो कि यहाँ पे पंडाल देखने आए हैं। तो आप कहाँ से आए? पाटनगर से। बहुत से आए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका मैं बात कर रहा था। देखिए एकदम सामने से देख लीजिए, एकदम जैसे हमारा एक सनातनी दुर्गा मूर्ति होते हैं वैसे बनाया हुआ है। मिंटू पाल जो आर्टिस्ट है उन्होंने बनाया है।
और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, अंदर से ये आपको लग रहा होगा थोड़ा अंधेरा जैसा अंधेरा है, थोड़ा गुहा जैसा बनाया गया है, केव जैसा बनाया गया है और बाहर से इसको एक जैसा माउंटेन जैसा इसका रूप दिया गया जिसके ऊपर फिल्म का प्रोजेक्शन होगा। ऑपरेशन सिंदूर का ये जो थीम है इस बार इसीलिए यहाँ पे रखा गया है ताकि लोगों में वो जागरूकता आए और भारत ने जो किया था ऑपरेशन सिंदूर उसका एक निदर्शन दिखा जाए। वैसे कोलकाता की पूजा जो है आर्टिस्टिक लेवल पे बोला जाए तो पूरा देश में इसका एक अलग पहचान है और इस बार भी लेबुतला पार्क संतोष मित्र स्क्वायर जो है इसका एक निदर्शन रख रहा है। 2025 में देश की मूड रहा है ऑपरेशन सिंदूर और वही ऑपरेशन सिंदूर को इस बार दुर्गा पूजा के पैंडल के तौर पे दिखाए जाएंगे संतोष मित्र स्क्वायर पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पैंडल है ये एक फाइबर ग्लास से बना हुआ एक पैंडल है जो कि एक पहाड़ की तरह बनाया गया है। आपको दिखाना चाहते हैं मेरे बाएं तरफ, कैमरा के बाएं तरफ आप जो है आप वो देखिए, वो भारतीय सेना की चौकी है और ये पहाड़ बनाया गया है और दाहिने तरफ पाकिस्तान की चौकी है जो कि एक बॉर्डर से उसको बैरिकेड कर दिया गया और वीरान है और इसी के ऊपर ये एक फिल्म प्रोजेक्शन होगी जो कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक किया था उसके बारे में हम लोग सबको पता है। पहलगाम की जो घटना घटी थी उसके विरोध में ये जो घटना अंजाम दिया गया था उसमें पूरा देश ने इसको सराहा था और उसी को आज यहाँ पे पैंडल के तौर पे दिखाया जा रहा है। अंदर क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बाहर ये देखिए एक माउंटेन जैसा एक हकीकत दिया गया है। ऊपर जो वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा वो बर्फ़ के तौर पे दिखाई देंगे, उसके नीचे जो ग्रीन कलर की है वो घास के तौर पे दिखाई देंगे। पीछे जो बादल आपको दिखाई दे रहा है वो तो ओरिजिनल है लेकिन लग रहा है एक ओरिजिनल पहाड़ जैसा बनाया हुआ है और पूरा फाइबर ग्लास का बना हुआ है ताकि बारिश हो कुछ भी हो इसमें कोई असर ना हो। और ये जो पैंडल है उसका स्पैन देखिए एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट तक पूरा इसको बनाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहलगाम मिलिट्री हॉस्पिटल इंडियन आर्मी बोल के भी यहाँ पे बनाया गया है ताकि यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस होंगे उसका एक रियलिटी चेक यहाँ पे मिले। और इसी को देखते हुए अमित शाह कल आएंगे यहाँ पे इसका उद्घाटन करने के लिए। यहाँ पे एक टैंक भी रखा गया है, डेमो टैंक, जहाँ से साउंड प्रोजेक्शंस होंगे ये पूरा चीज़ का वो भी रखा गया है और अमित शाह यहाँ पे आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। पिछली बार यही वो पैंडल है जिन्होंने राम मंदिर का इशू बनाया था। सजल घोष जो कि यहाँ का प्रेसिडेंट है, वो बीजेपी के काउंसिलर है, बीजेपी के नेता है, वो वही इशू बनाता है जो देश की मुद्दा होता है और इस बार देश का मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर है।